Yes, student. Today we will start the poetry section. It is given on page number 61 of your book Prudence, and it is written by John Donne. Very first poem, A Lecture upon the Shadow. ये पोइट्री सेक्शन है और वेरी फर्स्ट पोएम जो आपके पोइट्री सेक्शन में है पेज नंबर 61 पे वो है अ लेक्चर अपॉन द शेडो। और ये किसने लिखी है? ये जॉन डन ने लिखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द अबाउट द पोएट। John Donne was born on Jan 22, 1572 in London, England. He is known as the founder of the Metaphysical School of Poetry, a term used for Donne's poetry by Dr. Samuel Johnson. He was brought up as a Roman Catholic, later converted to Anglicanism, and was Dean of St. Paul's Church till his death. John Donne wrote love, lyrics, verses, and a series of holy sonnets and some sacred poems. His famous major volumes are satires and songs and sonnets. Now about the poem. This is a poem about love which metaphorically deals with vision. His poem compares the vision and the delusions of lovers to a situation of light and shadow where insight is engendered at noon only when the light of the sun produces no shadow. ये जो पोएम है इसमें मेटाफर जो है कंसेप्ट यूज़ किया गया है। पहले मैं जैसे आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि लिटरेरी टर्म मेटाफर क्या होता है। देयर इज़ ए कंसीट इन दिस पोएम। पोएम में एक कॉन्सेप्ट होता है, कंसीट होता है जो बिल्कुल हटके होता है, परे होता है, जो हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। पर जैसे कि जॉन डन ही इज़ द फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोएट, तो हम कह सकते हैं कि उनकी मास्टरी थी इस चीज़ में और उन्होंने इसको जो है कर दिखाया था। When the light of the sun produces no shadow, it denotes that the love of the beloved should not decrease or fade with the passage of time. इसमें जो दो लवर्स हैं उनके बारे में बताया गया कि उनका लव जो है किस तरह से जो है चेंज होता रहता है, लाइफ में किस तरह से चेंज होता रहता है। और एक ऐसी पीक पे भी आता है बिल्कुल जहाँ मिड पोजीशन होती है, तो वहाँ पे वहाँ स्थिति क्या होती है, स्टार्टिंग कैसे होता है और एंड किससे होता है, तो इस बारे में जो है इस पोएम में बताया गया। लाइक मैनी ऑफ डन्स पोएम, दिस पोएम टू रिफ्लेक्ट्स एन एम्फेसिस ऑन द इंटेलेक्ट एंड विट एज अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन विच इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। उन्होंने इस पर फोकस किया, रिफ्लेक्ट किया है उन्होंने इंटेलेक्ट की, इंटेलेक्ट में यानी विट यानी बुद्धि, समझदारी, एंड विट एज अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन, और वो किसके अगेंस्ट है? फीलिंग और इमोशन के। फीलिंग और इमोशन के आगे दिमाग बिल्कुल भी जो फेल नहीं हो सकता। तो इसमें इट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल रीड द पोएम। आप लोग जो हैं अपनी बुक में इसको देख सकते हैं। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव फिलॉसफी। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced, but now the sun is just above our head. We do those shadows tread, and to brave clearness all things are reduced. So whilst our infant loves did grow, disguises did, and shadows flew from us, and our cares, but now it's not so. That love has not attained the highest degree, which is still delicate, lest others see. Accept our loves at this noon stay. This is in paragraph 2. Accept our loves at this noon stay. Will shall now shadows make the other way? As the first were made to blind others, these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes. If our loves faint and westwardly decline, to me thou falsely thine, and I to thee mine actions will disguise. The morning shadows wear away, but these grow longer all the day. But oh, love's day is short. If love decay, love is a growing of full constant light, and his first minute afternoon is night. इसमें क्या कहता है पोएट? स्टैंड इट स्टिल। अपनी प्रेमिका को जो है प्रेमी कह रहा है स्टैंड स्टिल, रुके रहो। एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी, और मैं क्या दूंगा? एक लेक्चर दूंगा लव फिलॉसफी पे। दिस 3 hours दैट वी हैव स्पेंड, कि हमने ये 3 घंटे जो बिता दिए हैं वॉकिंग हेयर, 2 shadows वेंट अलॉन्ग विथ अस, कि हम चल रहे हैं और 2 shadows भी जो है हमारे साथ
चल रही है, विच वी आवर सेल्स प्रोड्यूस्ड, जो कि हमने ही बनाई है। शेडो को हम अपने आप से कभी अलग नहीं कर सकते, है ना। जहाँ हम चलेंगे वो हमारे साथ चलेगी, बस उसकी पोजीशन क्या है हमेशा चेंज होगी। बट नाउ द सन इज़ जस्ट अबव आवर हेड, अब जो है सन क्या है, बिल्कुल हमारे सिर पर है। तो आप खुद अंदाज़ लगाइए, यहाँ पे कंसीट ये यूज़ जो किया गया लाइट एंड शेडो का, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि अब जो सन है वो क्या है, हमारे बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। यानी हमने 3 घंटे बिता लिए हैं, और अब जो है 3 घंटे बिता लिए में से 9 बजे से करीब जो 7 होंगे, है ना, और फिर 12 बज रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, सन हमारे बिल्कुल ऊपर होता है। तो हमारी शेडो का क्या होता है, शेडो नील, शेडो नहीं दिखती हमको, हम प्रॉपर वे में हम शेडो को जो है नहीं देख पाते। वी टू दोज शेडो स्ट्रीट एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और उस समय सब कुछ जैसे क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, सिकुड़ सा गया है, ठीक है ना। तो हमें शेडो दिख रही है। अब इसमें जो है अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कंसीट क्या निकल के आया है मेटाफिजिकल, वो मैं आपको अभी आगे समझाती हूँ। सो विल्स्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, विस्ट अवर इन्फेंट क्या होता है, छोटा बच्चा है ना, नवजात जिसे कहते हैं, स्टार्टिंग। तो यहाँ पे क्या मतलब है, स्टार्टिंग से मतलब है, ठीक है। छोटा बच्चा जब भी होते हैं तो हम एकदम बड़े तो ना पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं पहले। तो इन्फेंट लव्स यानी स्टार्टिंग लव जो भी है, ठीक है, डिड ग्रो, कि जब हम पहले उसमें होते हैं, फर्स्ट स्टेज पे होते हैं लव की, तो हमारा लव जो है बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे के लिए मरने की वो करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने की वो करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, और जैसे जैसे ये प्यार बढ़ता जाता है और हमारे में क्या बढ़ता है, आपस में विश्वास बढ़ता है। डिस्गाइजेस डिड एंड शेडोज़ फ्लो, और फिर क्या है, वो प्यार इस तरह से होता है कि जैसे हम हमारे शरीर को से जो है शेडो को नहीं जुदा कर सकते, जो है उस तरह का सा प्यार हो जाता है। और उस समय जो शेडो होती है, आप सुबह के टाइम में देखिए शेडो किस दिशा में होती है, और बीच में आफ्टरनून में जो शेडो है वो कौन सी पोजीशन पे होती है, और बाद में जो है आफ्टर आफ्टरनून जो है वो शेडो किस पोजीशन में होती है। तो इन 3 कॉन्सेप्ट से, इन 3 कंसीट से जो देखो कवि ने कितनी अच्छी बात बोली है, पोइट ने इतनी अच्छी बात बोली है कि स्टार्टिंग में हमारा लव होता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है, एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, और एक मिड पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ बिल्कुल हर चीज़ें क्या होती जाती है, सिकुड़ती सी जाती है ना, एक जो है मेच्योरिटी पे भी आ जाता है हमारा लव। एक ये भी होता है कि हमारा जो लव है क्या है, मेच्योरिटी पे आ गया, एक पीक को पा लेता है हमारा लव, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, और उस समय जो शेडो होती है वो हमारे साथ होती है, और शेडो की भी जो है डायरेक्शन उस टाइम निश्चित होती है। पर आफ्टरनून यानी मेच्योरिटी के बाद, जब हमारा लव बहुत मेच्योर स्थिति में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होने लग जाता है, प्रॉमिस एंड आवर केयर्स, बट नाउ इट्स नॉट सो, अब ऐसा नहीं होता, यानी पहले जैसा नहीं होता, लव धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दैट लव हैज़ नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री, वो वाली बात नहीं रहती है, धीरे धीरे जो है लव भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और हमारी जो शेडो है वो किस डायरेक्शन में बन जाती है, आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट इसने यूज़ में लिया है लव को समझाने का, कि लव किस पीक पे होता है, पहले लव स्टार्टिंग में कहाँ होता है, फिर किस पीक पे आता है मैच्योर स्टेट में, और फिर लास्ट में क्या होता है, डिक्लाइन होता जाता है। तो उसने शेडो के से, क्योंकि शेडो भी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, तो हम भी चेंज हो, हमारा लव चेंज हो रहा है, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने इसको एज अ मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, यानी एक मेच्योरिटी की पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं, और हमारा जो लव है वो बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल स्टेबल अवस्था में है। वी शैल नाउ न्यू शेडोज़ मेक द अदर वे, अब हमारी नई परछाइयाँ बनी हैं, ठीक है, और जो है वो परछाई दूसरी साइड बनी है। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, with these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes, और अब इस समय क्या होता है कि हमारी स्थिति बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है, तो हमारा प्यार भी ऑपोजिट हो गया है, और हमारी मानसिकता कह लीजिए, हमारी साइट कह लीजिए, हमारा दृश्य कह लीजिए, वो भी सब क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। कुल मिला के जो है लव का भी रूप चेंज होता जा रहा है। इफ़ आवर लव्स फेंट एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, देखो
फेंट यानी जो प्रेम की जो है गिरती हुई अवस्था को किससे बताया, वेस्टवर्डली डिक्लाइन से कंपेयर किया है। यहाँ पे बहुत अच्छा ये कंसीट, मेटाफर कंसीट यूज़ किया है। तो इस तरह से जो है हम लव को जो है लास्ट में क्या वेस्टवर्डली डिक्लाइन मान लिया इसमें। टू मी दाउ फॉल्सली दाइन, और इस समय सब क्या हो जाता है, झूठा सा प्रतीत होता है। एंड आई टू दाई माइन एक्शन सेल डिस्गाइज, और एक तरह से क्या होता है कि जैसे कोई हमने जो क्या है डिस्गाइज हो गए हैं, यानी हमने भेष बदल लिया है। तो प्यार भी इस तरह से बदलता है, प्रेम भी इस तरह से बदलता है। द मॉर्निंग शेडोज वियर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, जो सुबह की परछाई है वो चलती है हमारे साथ, ठीक है। वियर अवे, कितना अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेटाफर का इसने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे इसने मेटाफर है ये वियर अवे ना, ये वाली लाइन, द मॉर्निंग शेडो वियर अवे, कभी भी जो है शेडो वे को वियर नहीं करती, पर यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। कितनी अच्छी लाइन यूज़ की गई है। बट डीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, और धीरे धीरे ये परछाई आपने देखा होगा कि एक मैच्योर स्टेट के बाद जैसे आफ्टरनून के बाद परछाई भी लंबी होती जाती है, ठीक है। बट वो लव्स डे इज़ शॉर्ट, परंतु जो है जो लव डे है वो शॉर्ट होता है, यानी आफ्टरनून का टाइम क्या था, जब मैच्योर पोजीशन पे लव है तो वो टाइम कितना शॉर्ट होता है ना, आफ्टरनून वाला टाइम। इफ़ लव डिके, लव इज़ ए ग्रोइंग ऑफ फुल कॉन्स्टेंट लाइन एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज़ नाइट, और फिर हमें तुरंत पता भी नहीं चलता, हालांकि लंबी शेडो है, बहुत लंबी परछाई है, पर उसके बाद एकदम से रात आ जाती है, शेडो भी नहीं दिखती है, कुछ भी नहीं दिखता। इट मीन्स जो है हमारा लव भी क्या है, एक ऐसी पोजीशन पे लास्ट में पहुंच जाता है कि हमें जो है फिर वो वाली बातें जो पहले वाली बातें थी वो अब हमारे लव में एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द पोएम। तो जो भी है आप इसमें इसके जो है एक्सप्लेनेशन का मैं PDF भेज रही हूँ, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके एक्सप्लेनेशन के, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।